today. Yeah, I guess क्या हाँ assignment deadline is today. If you haven't done, so make sure to complete it. Then you can join. And if done, so it's very much fine. So now we are going to start the session. Sure. So interactivity, I should be thinking कि भाई आप लोग करोगे everyone. Sure. So a thumbs up from everyone. A meet is recording or क्या चल रहा है? Anyone from team why not? Ma'am Larry, are you there? Mansi? Okay. I guess yes, हाँ, Manshi, हाँ, ma'am is there. I guess she is recording the session. No? Fine. Sure. Thanks a lot. Moving to the today's part, what is list? Can anyone can define what is a list? I think my screen is visible क्योंकि मेरे को दूसरे टैब में स्विच करना पड़ रहा है. कोई भी अपना माइक खोल के बता देना प्लीज. Yes, it is visible. हाँ. And if any or the if you are commenting in your comment box, so you can simply raise your hand. I will be looking into it. Sure. So starting with the list, what is a list? Can anyone explain कि भाई list क्या चीज होती है? क्योंकि list is one of the This is the collection of data types. 100%. Fine. Sure. Thanks a lot. A list, if you are going to define a list is a kind of a collection of multiple items in a single variable. For example, there is a list. List को हम कैसे समझ सकते हैं? I guess all of you are comfortable in Hindi, English both. If you are not, so you can also raise your hands or you can open your mics. So fine, sure. So if you are moving with a list are the we can say used to store multiple items in a single variable. For example, here is my list. There is a my list, and we are storing with apple, banana, and cherry. We are going to store these things, these three things in my list. Fine. If I'm going to ask what is the difference in a list, what is the basic difference between list and tuple? Any can anyone explain? Like हमने थोड़ा सा basics हमने कल cover करे थे इस चीज के भी. Please. A list is mutable, sir. Yeah, list is mutable. And second, Tuples are not mutable. okay, fine, sure. And the one more basic thing which I have told you in yesterday's class was कि in list we usually denote list in a square brackets, which is one of the basic important denotation. And in tuple we basically use round brackets, जो अभी हम देखेंगे. Sure. इतना चीज पता चला. कोई भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स, द लिस्ट इज बेसिकली कॉल्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, जो कि हम लोग कलेक्ट करते हैं एंड पुट इट इन ए प्लेस. वो प्लेस क्या हो सकती है? विच कैन बी कंप्यूटर, ए फाइल, और कुछ भी चीज हो सकती है. श्योर. लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू आर कलेक्टिंग ए लिस्ट. ठीक है, तो आप उसको एक पेपर में ही तो लिख के ले जाओगे, तो इट इज अ काइंड ऑफ लिस्ट. ठीक है. Now moving with items of list. List items are ordered, changeable, and allow duplicate values. These are the third, fourth, and fifth differences which you can write in your examination or kind of stuffs. And one question from list in your quiz one. If you are a Python student also, so one question from list and tuple or these things can be there. ठीक है, maximum chances रहते हैं. Fine. So list is ordered. What do you understand by order? It is in the structured way. For example, order. When we say like list are order, it means items are defined. For example, fruits, एप्पल, बनाना, चेरी, या फिर उसके बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल सकता, बोतल नहीं डाल सकता, विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. मूविंग विथ चेंजेबल. लिस्ट इज चेंजेबल. हम कोई भी एलिमेंट्स को लिस्ट के चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सॉरी, W3 स्कूल की वेबसाइट. Yeah, if I'm writing इसके बीच में, for example, I have erased this apple और मैं I'm writing strawberries. Sure. तो वो change हो जाएंगी. But tuple में वो change, these things are not changed. And make sure to highlight this thing. List items are indexed. First item has index 0. Second item has index 1. जो कि हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था. For example, if I'm like
डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, मैं इसको अलग कर रहा हूँ, एप्पल की वैल्यूज को अलग कर रहा हूँ, कैन एनीवन टेल कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? बिकॉज कंप्यूटर इंडेक्स वैल्यू से ही देखता है। सॉरी, या जीरो, रुद्रा 100%, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो यू कैन सिंपली रेज योर हैंड्स, या फिर आप माइक खोल के पूछ सकते हैं, इट्स ओपन फॉर ऑल, ठीक है। तो मेक श्योर टू हाईलाइट दिस कि कोई भी लिस्ट का जो एलिमेंट दैट विच वी आर गोइंग टू टेक एज ए एलिमेंट, ठीक है, उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, एंड सेकंड आइटम का कभी भी इंडेक्स होता है 1, ना कि 2। फाइन, चेंजेबल का भी हमने पढ़ लिया। अब अलाउ डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स का मतलब होता है इन ए लिस्ट, इफ आई एम गोइंग टू लाइक 2 टाइम्स इसने एप्पल लिखा है, आई हैव टू राइट 2 टाइम्स एप्पल, तो इट विल बी प्रिंटिंग माय 2 टाइम्स एप्पल, ना कि वो हमें एरर देगा या कोई भी चीज देगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वी कैन से इट अलाउ डुप्लीकेट्स। फाइन, टू डिटरमाइन लेंथ किसी भी चीज को, लाइक पाइथन इज ए लैंग्वेज जहां पर को हमें थोड़ा सा दिमाग, वीकेंड से हमारा माइंड का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग लेंथ किसी की भी एनीथिंग, इफ आई हैव टू नोटिफाई एज ए लेंथ, तो व्हाट आई एम राइटिंग, आई हैव टू राइट len, लेन एज ए फंक्शन, ठीक है। फाइन फॉर एवरीवन, जितना यहाँ पर तक हमने करा था वो कंप्लीटली समझ में आया होगा, आई एम थिंकिंग सो। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क। फाइन, so some list item, for example data types are here. L1 list 1 में है एप्पल, बनाना, चेरी, लिस्ट 2 में है 156। हाँ, तो if I'm asking you what are these, एप्पल, बनाना, चेरी, these are the fruits, तो मेरे को पता है, बट एक्स्ट्रा में क्या है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू से लिस्ट 3 में ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स इज नोटिफाइड एज बुलियन। कभी भी बुलियन डेटा टाइप अगर हम देखते हैं तो ट्रू फॉल्स में ही वी हैव टू नोटिफाई। सो यू कैन से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, इंट, वैल्यूज। String and second list is integer. या 100% अच्छा, श्योर। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो कि आपको पता होने चाहिए। नाउ मूविंग विद टपल, या जिसने भी हैंड रेज कराया, वुड बी रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज ओपन योर माइक। Give me a second. First one is string, second one is integer, and third one is boolean. Yeah, Rudra, 100% fine. Thanks a lot. Now moving with tuples. अब in a list, I have told you कि list is notified as a square brackets, but tuple is notified as a round brackets. Same चीज होती है, everything is same, but the basic difference if you are counting, तो round brackets का ही difference आता है। If I'm going with the tuple का difference, tuple are used to store multiple values in a single variable, multiple items in a single variable. But difference, for example, मैंने वहां पर को भी एप्पल, बनाना, चेरी दिया, so what will be the basic difference to identify a list and tuple will be this brackets one. Is that fine? Tuple is one of the 4 built-in data types in Python. Here it is a kind of normal definition, ठीक है। And second difference, the second one of the important difference is tuple is the collection of ordered item, but it can't be changed. For example, I have written here apple, banana, cherry, and I am running my program. तो मेरे को बैकएंड में जाके हम चेंज नहीं कर सकते, एंड आउटपुट विल बी एप्पल, बनाना, चेरी, वो चेंज नहीं होगा। सो द टू डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इज, टपल इज नोटिफाइड एज राउंड ब्रैकेट्स एंड टपल होता है अनचेंजेबल, ऑर्डर्ड होते हैं दोनों। नाउ मूविंग विथ टपल वाली चीज, ठीक है। टपल एंड लिस्ट का ये जो पार्ट होता है इंडेक्सिंग वाला, इट इज 100% सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर्ड वाला भी चेंज डिफरेंट इज इक्वल्स टू लिस्ट एंड अनचेंजेबल। अनचेंजेबल में इफ आई एम गोइंग विद द थिंग इज कि अनचेंजेबल, लिस्ट इज अनचेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज और ऐड और रिमूव एनी आइटम्स आफ्टर टपल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है। एंड वन मोर थिंग इज कि टपल अलाउज डुप्लीकेट।
जैसे लिस्ट डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, टपल ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट। टपल डिफरेंट इनके बीच में, इज इट फाइन फॉर एवरीवन ना गाइस? A thumbs up from everyone. I would be requesting if you are active here, so please मेरे को बता तो दो भैया कोई, मतलब if you are facing doubt, I would be requesting guys, please ask the things. Yeah. ठीक है, ऐसे ही होता है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सबने पाइथन मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़े हैं। Please define what are sets. अरे आज कोई माइक का ही नहीं खुल रहा है गाइस। Sets are the collection of data, find comma separated value, no duplicate, are the collection of 100% यही होता है sets. Fine. If I'm going with the sets वाला part, sets are defined, are used to store multiple items in single variable. सबकी definition same है. List, tuple सबकी definition same है. But if I'm going to notify the thing is कि यहाँ पर को हम curly braces use करते हैं to identify the elements. For example, I have used curly brackets here, apple, banana and cherry के उसमें. If I'm solving a thing, तो with which type basically हम लोग कभी भी यूज करते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वी बेसिकली यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, विच इज नोट आइडेंटिफाइड एज ए लिस्ट, ठीक है। नाउ मूविंग विद द सेकंड मोस्ट थिंग, a set is a collection of unordered item, unchangeable and unindexed, ठीक है। व्हाट इज अनऑर्डर्ड? ठीक है, किसी इसके आइटम्स को हम ऑर्डर नहीं कर सकते। If I'm going to unordered means that the item in a set does not have any defined order. Like if I'm going with apple, banana, cherry, तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, apple, cherry, banana, kind of stuff. And unchangeable. If I'm writing एक बार तो I have set and created. उसके बाद I can't change it. And here no duplicates are allowed. अगर duplicates होते तो it can give us error. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, तो दिस विल बी गिविंग अस ए एरर। इफ आई एम गोइंग टू शो यू हियर इन दिस डेमो वाला पार्ट, अब देखो, इट इज अ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस सेट इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है एप्पल, बनाना, चेरी एंड एप्पल, व्हाट इज द आंसर? बनाना, एप्पल, चेरी, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ अनऑर्डर्ड, आंसर सब सेम आ रहा है बट यू कांट चेक इट्स ऑर्डर। इफ आई एम प्रिंटिंग लिस्ट वाला चीज, इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन ए, तो वो एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल एक स्ट्रक्चर्ड वे में इट विल बी प्रिंटिंग आउट द स्टफ, ठीक है। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिंट हो रहा है बट इनसेट वाला चीज वो स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिंट नहीं हो रहा था। I think all of you are getting the things, ठीक है। One more important thing is कि true, if you are getting true, true is notified as 1 and false is notified as 0। यहाँ पर को ज्यादा कुछ नहीं होता है, and sets are kind of things जो कि ज्यादा नहीं पूछते, and it's a normal thing। Fine। Now moving with Python dictionary, Python dictionary and sets are equal, ठीक है। काइंड ऑफ स्टफ्स, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं अगर आपको नोटिफाई या फिर डिफरेंस बताना है तो इसमें ब्रैकेट का डिफरेंस सेम होता है, बट डिक्शनरी क्या बोलता है? डिक्शनरी सेज इट विल स्टोर आइटम इन की पेयर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके मार्क्स देखता हूँ स्कूल के या फिर बीएस के, इफ यू आर टेकिंग मार्क्स, तो पहले सब्जेक्ट नेम आता है, सब्जेक्ट नेम हमेशा की में जाता है, एंड वैल्यू शुड बी अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल वो मार्क्स हो गए या फिर कोई भी चीज हो गया, ठीक है, योर सैलरी या फिर कुछ भी चीज। फॉर एग्जाम्पल इन ए डिक्शनरी हियर इट इज गिवन ब्रांड और वो है फोर्ड, मॉडल है मस्टैंग, ऑन ईयर इज 1964। तो द बेसिक थिंग इज कि ये की पेयर वैल्यूज, की है ब्रांड, की के अंडर वी विल बी लिस्टिंग आउट ब्रांड्स, मॉडल, ईयर्स, एंड फॉर द
values we are going to store Ford Mustang 1964, and these things are very much important for your I'm repeating this. ठीक है, OPP या फिर अगर किसी कोई OPP देके आ गया है, तो you can ask from them also. ठीक है, ये चीज, these things are important. Moving with the thing, dictionary items are ordered, changeable and does not allow duplicates. जैसे sets तो होता है unordered, unchangeable and do not allow duplicates, but the dictionary is ordered, changeable and do not allows duplicates. ठीक है, आई थिंक ये चार चीजें हमने जो आज बेसिक्स में पढ़ी थी, आई थिंक ये सबको समझ में आई. जनरल रिव्यू फ्रॉम योर साइड गाइस प्लीज. Today we have only 21 students. हाँ, yeah, sure. अरुल, देखिए, if we are going for the list, अगर हम you are asking I guess for the all four differences, I guess list, tuple, set and dictionary. Guys, wait for a minute. ठीक है, there is one important call. मैं आपको 2 मिनट में. Yeah, sorry guys. ठीक है, तो अरुल, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग. ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है? द बेसिक डिफरेंस इज लिस्ट हैज राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग टपल हैज राउंड ब्रैकेट्स एंड सेट्स एंड डिक्शनरी हैज कर्ली ब्रेसेस, जो कि सबसे बेसिक सा नोटिफिकेशन है. एंड डिक्शनरी में हम लोगों ने क्या बोला था? डिक्शनरी इज ऑर्डर्ड. ठीक है, वो आप एक बार जीपीटी में भी डाल देना, यू विल बी गेटिंग डिफरेंस और यू कैन विजिट द वेबसाइट. ठीक है, इसमें एवरीथिंग इज लिस्टेड कि कैसे क्या चीज है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप वाला पार्ट. फाइन. अब बताइए कंडीशंस किस किसको पता है? पाइथन के अंदर कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस? अरे आज कोई माइक ओपन नहीं कर रहा क्या? सॉरी. या रुद्र, प्लीज open your mic and I would be requesting you to please share. Yes, sir. I know a little about the conditions. Yeah, continue. Please, जितना पता है उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं है. So, equals, I mean the conditions, if we take out the output, it will be result in Boolean values. And yes. ओके, ठीक है. कंडीशंस को आपको, इफ यू आर मूविंग विद द थिंग इज कि कंडीशन, हाँ, इफ यू आर मूविंग विद द कंडीशंस, कंडीशंस को इन इजी और हिंदी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना है इफ द थिंग इज करेक्ट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, कंडीशंस, इक्वल की कंडीशन क्या होती है? ए डबल इक्वल्स टू बी. नॉट इक्वल्स की होती है एक्स मार्क इक्वल्स टू बी. ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन काइंड ऑफ स्टफ्स. फाइन. अब आती है टू इफ कंडीशन.
पाइथन कंडीशंस एंड स्टेटमेंट्स, ये चीज क्यों लिखी है? कंडीशंस तो हो गई आपकी ये इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जो हमने कल पढ़ा भी था, एंड वी हैव अप्लाइड द थिंग्स देयर आल्सो. एंड इफ कंडीशन को हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ इफ कंडीशन. फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक स्टोर वी कैन से, ठीक है, अब स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन या फिर जो भी है, ए क्या है, ए बी, ये चीज क्या है हमारी? वेरिएबल्स. 100%. ठीक है, तो एक वेरिएबल के अंदर हमने कोई वैल्यू, इफ यू आर स्टोरिंग ए वैल्यू इन ए वेरिएबल, देन उसके बाद हमें कंडीशन तो डालनी पड़ेगी टू गेट ए आउटपुट. फॉर एग्जांपल, अगर, इफ का मतलब होता है अगर. लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 22. इफ b b ग्रेटर देन a, तो वो प्रिंट करेगा b इज ग्रेटर देन a. ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ कंडीशन जो कि हम लोग दो वेरिएबल्स के अंडर लगाते हैं टू गेट ए डिजायर्ड आउटपुट या फिर टू गेट ए इजी आउटपुट. सिंपल सी चीज है, नथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स इज इक्वल टू 15. इफ नंबर ग्रेटर देन 0, तो वो प्रिंट करेगा द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, इफ कंडीशन आपको समझ में आई? यस सर. ठीक है, तो सिंपल सी चीज से समझना है एवरीथिंग. नाउ मूविंग विद इंडेंटेशन. हमने कल भी देखा था व्हाट इज ए इंडेंटेशन. प्लीज हेल्प कि क्या इंडेंटेशन क्या होता है? It's kind of a spacer after a given condition. या 100%. श्योर, थैंक्स अ लॉट. सो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ स्पेस जो कि किसी भी, इफ यू आर राइटिंग ए कोड और ए काइंड ऑफ स्टफ्स, तो हमें स्पेस करना पड़ता है. एंड देयर वाज अ ट्रिक. इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इंडेंटेशन प्रॉब्लम हियर, तो देयर वाज अ ट्रिक जो कि मैंने कल बताई थी. व्हाट वाज द ट्रिक? कैन एनीवन एक्सप्लेन? स्मॉल स्टेप वाज देयर. हेलो, I'm audible? हाँ, या विक्रम, कितने बार टैप ब्रो? अरे One time, why sir. are you One time, not? sir. No, Ajay, we have to go with the 3 times. Fine. अरे विक्रम सर, अब माइक तो खोलिए सर, ऐसे सर क्या? वो बैकग्राउंड नॉइस है इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ. अरे कोई दिक्कत नहीं, हाँ फाइन. ठीक है, तो देर इज अ वैल्यू. ठीक है, इंडेंटेशन का कभी भी प्रॉब्लम आता है इन योर पाइथन ओपीपी ऑल्सो, तो मेक श्योर करना है कि 3 टैब डालने. कंडीशन के बाद इंडेंटेशन आएगा, एंड आफ्टर कंडीशन, फॉर एग्जांपल आफ्टर दिस कॉलन आई विल बी राइटिंग, तो वो मेरे को 3 टैब के बाद स्टार्ट करना है. 1 2 3, 3 टैब मैंने स्टार्ट करे. इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस, तो वो क्या देखते हैं, प्रिंट होगा नहीं वो, या b is greater than a. ठीक है, तो द बेसिक डिफरेंस फॉर द बेसिक थिंग फॉर द इंडेंटेशन इज कि 3 बार आपको टैप करना है, वो इजीली आपका कवर आउट हो जाएगा. एंड इफ यू आर गोइंग विद द मल्टीपल स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू 20, इफ एज ग्रेटर इक्वल्स टू 18, फर्स्टली वी हैव टू प्रिंट यू आर स्टिल अडल्ट, यू कैन वोट, यू हैव फुल लीगल राइट्स. ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, कोई बता सकता है? All three of them. Yes, sir. All three of them. 100%. ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी बेसिक थिंग जो कि हमने अभी तक देखा था. नाउ इतना जितना हमने पढ़ा, किसी को इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यू और एनी काइंड ऑफ थिंग, सो यू कैन लाइक प्लीज आस्क. आई एम योर बड़ा भाई यू कैन से, और सेम एज. ठीक है, देन वी आर मूविंग विद क्यूज एंड काइंड ऑफ स्टफ्स. प्लीज, इफ यू आर ओके विद दिस, सो यू कैन गो विद अ थम्स अप. We have today 19 members, so I would be requesting guys maximum interactivity. Yeah, if you are moving with the queue वाला part, क्यू क्या होता है?
Q is a linear data structure that stores item in manner, for example first in first out. ठीक है, अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या चीज है? ठीक है, व्हाई आई एम गोइंग टुडे एज ए क्यू, क्योंकि कल हमने इतना चीज पढ़ा था, एरे, स्टैक एंड टुडे वी आर गोइंग विद द क्यू, हीप, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग है कि सभी हम देखेंगे एंड हीप वाला पार्ट भी। तो इफ आई एम गोइंग विद द क्यू, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स आइटम। ठीक है, ये भी बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है आइटम इन ए फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, इन ए काइंड ऑफ मैनर। इफ वी आर मूविंग विद द डायग्राम, ठीक है, एक वो है, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 इज द फ्रंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां से तुम एक एक करके एलिमेंट्स को डालते रहोगे और यहां से आप यू हैव टू डिलीट। एंड इन पाइथन वी कैन से इंसर्टिंग को हम इंसर्ट कहते हैं, डिलीट को हम डिलीट ना कह के पॉप कहते हैं। फाइन, किसी भी एक एलिमेंट को इफ वी हैव टू डिलीट, वी हैव टू से इट डी क्यू या फिर पॉप। अगर डी क्यू इज लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट आप पॉप को याद रख सकते हो, इंसर्ट एंड पॉप। फाइन, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आई गेस सभी को समझ में आएगा व्हाट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यूजिंग लिस्ट, पहला इज द फॉर्म वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूजिंग लिस्ट। ठीक है, एक क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है? एक एम्प्टी ब्रैकेट्स में व्हाई आई हैव रिटन दिस। कल हमने क्वेश्चन में भी यही चीज लिखी थी, क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट, एंड उसके बाद हमने अपेंड नहीं करवाया था। Hello, I'm audible now? Hello, I'm audible. एक second. Sorry for the network issues. Hello. Yeah, sure. Yeah, Rudra, it's a kind of very basic thing we are going with. Take no worries. Give me a second. Yeah, if I'm going to explain you the whole part, list can be used as queue, but removing element from first requires the shifting of elements. ठीक है, मेकिंग इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यू एन, जो कि हम फोर्थ डे में पढ़ेंगे अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू सॉल्व द थिंग्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इन ए डायग्राम आई हैव शोन यू। ठीक है, हमें कोई भी एलिमेंट बैक से डालना है, फर्स्ट इन कभी भी पीछे से जाएगा। इफ आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है, एक एक करके जा रहा है एंड फर्स्ट आउट, जो पहले गया है वो पहले बाहर आएगा। ठीक है, इट फॉलोज द स्ट्रक्चर। तो वही चीज यहाँ पर को भी हो रही है, इट नोटिफाइज। ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्यू इज इक्वल टू एक एम्प्टी वी कैन से लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट क्या है, इसका मतलब होता है इट क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट। अब इन क्यू क्या है, यहाँ पर को वी आर यूजिंग अपेंड वाला पार्ट। ठीक है, सो अपेंड इज बेसिकली टू ऐड द एलिमेंट इन ए रो। जो भी हमारा स्टैक होगा वो एबीसी को ऐड करता रहेगा, नथिंग एल्स। फाइन, तो वो हमारी जब प्रिंट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द पहली क्यू। ठीक है, जब हम प्रिंट कर रहे हैं पहली क्यू को, तो वो हमारा अपेंड कर रहा है एक लिस्ट को एबीसी। ठीक है, यू कैन चेक आउट द आउटपुट हेयर ऑल्सो, एबीसी एक लिस्ट है। फाइन, अब हमें एलिमेंट्स डी क्यू फ्रॉम क्यू हम एक एक करके बाहर निकालने हैं। वी हैव टू लाइक रिमूव द एलिमेंट्स एंड वी हैव टू पॉप द थिंग अकॉर्डिंग टू क्यू सेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा फर्स्ट में क्या गया था, ए गया था, बी गया था, सी गया था। विच एलिमेंट वाज इन द फर्स्ट? A. 100%. Fine. So firstly, we have to remove A. For removal वाला part, but we will be using pop. Print q dot pop 0, print q dot pop 0. ठीक है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है इंडेंटेशन, क्योंकि जो फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट है।
तो फर्स्ट में A was out, फर्स्ट में A was in, A was out. If I'm going to remove this, give me a second. Yeah. ठीक है, तो देखो, if things are here, अगर किसी ने हैंड रेस करा है तो you can simply ask your question please. अच्छा नहीं, ठीक है, तो अब जैसे मैंने उसको लास्ट वाली लाइन को मैंने इफ हैव रिमूव द पॉप वाला पार्ट, तो यू कैन चेक आउट हियर सी इज लीविंग, ठीक है, वो आउटपुट में दिख रहा है आपको सी कि वहां पर को है, ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला चीज है एंड नथिंग एल्स. यूजिंग कलेक्शन डी क्यू ये आपका एफिशिएंट होता है, ठीक है. यहाँ पर को इफ यू हैव नोटिफाइड लिस्ट में ओ ब्रैकेट एन आ रहा था, ओ ब्रैकेट एन टाइम्स, एंड यहाँ पर को क्या आ रहा है, ओ ब्रैकेट वन टाइम, ठीक है. तो यहाँ पर को क्या है, हमने पहले चीज फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डीक्यू, हमने कोई चीज बाहर से इंपोर्ट कराई है, देन वी आर गोइंग टू प्रिंट हियर. अब इफ यू आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन हियर, फॉर एग्जांपल हम क्यू का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मूविंग इनटू डीएसए पार्ट आल्सो. आई गेस क्यू सभी को समझ में आया कि क्यू बोलता क्या है गाइस. श्योर, ठीक है. व्हाट द क्वेश्चन सेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनेबल टू ईट लंच, ठीक है. सो अब मेरे को क्वेश्चन एक बार सभी पढ़ेंगे. स्कूल कैफेटेरिया ऑफर्स ए सर्कुलर एंड ए स्क्वायर सैंडविच ऑफ लंच ब्रेक, ये अटम चटम बवाला जो भी है, इतना हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है. इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वी विल बी मूविंग इनटू द एग्जांपल, इनपुट आउटपुट एंड चीजें देखेंगे. फाइन. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स की लिस्ट दी है 1100 एंड सैंडविच की लिस्ट दी है 0101 एंड आउटपुट इज 0. अब यू विल बी थिंकिंग कि यहाँ पर को आउटपुट 0 कैसे है, लॉजिक क्या है, तो यू हैव टू गो इनटू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है. एक्सप्लेनेशन को जाओ, पूरा पढ़ो. फ्रंट स्टूडेंट्स लीव द टॉप सैंडविच एंड रिटर्न्स एट द एंड ऑफ लाइन मेकिंग स्टूडेंट्स, ठीक है. जो स्टूडेंट्स था, जो ये वाला पार्ट है ए, ये जो 1 है, ये अपनी सैंडविच ले जाके ये बैक जाके अपने रो में आ जा रहा है, तभी वहां पर को वी आर गेटिंग 1001. आई गेस ऑल सभी को समझ में आ रहा होगा. सॉरी इफ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग, ठीक है. ऐसे ही करके वो प्रोसेस चलती रह रही है, तो 0011 आ गया. नाउ अब क्या सीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग विद द थिंग, फ्रंट स्टूडेंट्स टेक टॉप सैंडविच एंड लीव द लाइन 11011 एंड 101, ठीक है. सेम चीज सैंडविच में भी रिपीट हो रही है, तो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, हमको एट द एंड एम्प्टी स्टैक लाना है, ठीक है. जैसे यहाँ पर को आउटपुट है, तो वी हैव टू गो विद द आउटपुट 0, एंड सेम चीज यहाँ पर को अप्लाई होगी. एक एक करके एक साइकिल इसकी चलेगी, एक साइकिल इसकी चलेगी, एंड वी हैव टू रिमूव द एलिमेंट्स. फाइन. सो अगर ये लॉजिक समझ नहीं आया तो आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन यू एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो कि है 0s एंड 1 में, ठीक है, एंड सैंडविचेस की स्टैक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जो सैंडविचेस है वो उनका एक स्टैक है जो कि है 0s एंड 1 में भी, एंड 0 इज द सर्कुलर सैंडविच एंड 1 इज द स्क्वायर सैंडविच. ये हमें क्वेश्चन देख के पढ़ के पता चल जाएगा, 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 इज द सर्कुलर सैंडविच एंड 1 इज द स्क्वायर सैंडविच. फाइन. सो हमें कोड ब्रेकडाउन अगर मैं करता हूँ, जैसे इन योर लीड कोड वाला पार्ट, इफ यू आर नॉट हियर, तो आई एम शेयरिंग दिस लिंक आल्सो, यू शुड बी ट्राइंग इन ए लाइव मीट प्लीज. आउटपुट 0 क्यों है सर एग्जांपल 1 में, वो पीछे पीछे जा रहा है, दैट आई अंडरस्टूड, जहाँ स्टूडेंट साइकिल हो रहा है, बट व्हाई का हाँ, आउटपुट 0? तो देखो, हाँ 100%. देखो फॉर एग्जाम्पल आपको एक राउंड टेबल, सर्कुलर टेबल समझनी है, यानी कि स्क्वायर टेबल समझनी है. फाइन. 0 हमारा सर्कुलर सैंडविच को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 हमारा स्क्वायर सैंडविचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइन. अब देखो, पहले हमने सर्किल चलाया, सर्किल हमने चलाया, तो ये फॉर एग्जांपल जो ये 1 है, ये आपका बैक में चले जाएगा, ठीक है, एंड योर आउटपुट विल बी 1001. सेकंड में 0 आगे आते जाएंगे, 0011. नाउ मूविंग विद द थर्ड केस, फ्रंट स्टूडेंट्स टेक
top sandwich and leave the line making students. इसको आप ध्यान से पढ़िएगा. Front No, हाँ the zero. So students 1100 मतलब students में 1 क्या है? स्टूडेंट में सैंडविचेस में तो 0 सर्कुलर हो गया, 1 स्क्वायर हो गया. नहीं, स्टूडेंट में 1 क्या वो है? उतना देखो, उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले जाओ. सीधा सा सिंपल सा एक रफ में डायग्राम बनाओ. ठीक है, 1100. रुको एक सेकंड में नोट पैड मिल जाओ. What I'm not able to understand is थर्ड में क्यों एक बंदा निकल जा रहा है लेकिन पहले 2 में क्यों नहीं निकल जा रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ. यप. हाँ नोट पैड. Sleeping to use person. अच्छा है ना इसमें. एक सेकंड देना, वो विंडोज में चल रहा है नहीं चल रहा. Thanks a lot. Let go. Yep. नहीं वो आज नहीं चल रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया था वहां पर को लिस्ट क्या दी थी? मेरे को लिस्ट बताना, लिस्ट क्या दी थी? सैंडविचेस वाला नहीं. 1011 पहले में ये दिया था. एंड सैंडविचेस में दिया था आपका. सैंडविचेस का क्या है? 11000101 1100 1100. एंड सेकंड का क्या था? प्लीज बताना प्लीज. आई एम ऑडिबल? हेलो, इतना तो बताओ. 1010 210. हाँ ठीक है, इसको आप अभी भूल जाओ कि ये भी कोई चीज है. ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ. अब वो क्या कह रहा है कि वो बोल रहा है कि स्टैक. फॉर एग्जांपल जो पहला एलिमेंट है सैंडविच का तो 0101 था. ठीक है, वो बोल रहा है कि जब तक 0 अगर आपकी फ्रंट लाइन में नहीं आ जाता, अब अभी के टाइम पे क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में वो हो जाएगा 1001. ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा? 0011. अब उसने क्या बोला था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन पढ़ना. तो जो इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू आ गई सेम. ठीक है, तो हम इन दोनों को कर देंगे रिमूव, 0 वाले पार्ट को. ठीक है, ये 0 एंड दिस 0 हम लोग कर देंगे रिमूव. अभी जैसे इसमें भी ये सेम साइकिल चल रहा है. ठीक है, 011 101. और हमारे में क्या साइकिल चल रहा है? 00011 एंड 101. ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ले जाके वो बाहर निकाल रहे हैं चीजों को. एंड द आउटपुट विल बी 0. वो 100% खत्म हो चुका है. बट इसमें क्या चीज हो रही है? इसमें अगर आप इसको रफ में करोगे अपने, तो इट विल टेक ए प्रोसेस जो कि बहुत लंबी जाएगी. एंड आफ्टर आउटपुट लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो कभी इरेज ही नहीं हो पाएंगे. काइंड ऑफ क्यों नहीं इरेज हो पाएंगे? क्योंकि यू कैन सिंपली डिनोट, यहाँ पर को 3 zeros है एंड 3 ones है. एंड हियर वी हैव 4 ones एंड 2 zeros. ये कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है. बट यहाँ पर को हमारा 2021 के कॉम्बिनेशन बैठ रहा है. समझ में आया विक्रम? हाँ, यस सर, यस. आई वुड बी रिक्वेस्टिंग गाइस, सभी को समझ में आया कि नहीं? प्लीज कोऑपरेट.
Yes, sir. फाइन। तो अब दिस इज द प्री बिल्ड वाला चीज, सॉल्यूशन क्लास डेफ, ये चीज हमारी पहले से लिखी रहती है। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या बोल रहा है, जस्ट दिस इज जस्ट डिफाइनिंग द फंक्शन इनसाइड ए क्लास। नॉर्मल लीड कोड का जो फॉर्मेट होता है वो चीज डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, नाउ आई हैव टू राइट काउंट 0, रुक जाओ, 1 2 3, 1 2 3, पहले सही था। हाँ, काउंट इज इक्वल टू 0, एंड मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि व्हाई आई एम राइटिंग हियर काउंट इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू सेम लाइन हम लोग लिखेंगे नीचे, I think my lead code वाली screen is visible to everyone. Yeah, ठीक है। अब मैंने ये दो चीजें क्यों लिखी हैं? Now first, this is one of the first basic step जो कि काउंट कर रहे स्टूडेंट्स को who prefer 0 and who prefer 1। ठीक है, how many students want 0, how many students want 1। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, टेक कमेंट्स। हाँ, ठीक है, तो 1 1 0 0 0 था ना, तो काउंट 0 में कितने एलिमेंट्स आएंगे एंड काउंट 1 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कोई बताओ प्लीज। काउंट 0 में कितने, 2 एलिमेंट्स दोनों में आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इतना ही है, इसका काम इतना ही है कि वो आइडेंटिफाई करके चीजों को हटा रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा है। नाउ आई विल बी यूजिंग फॉर कंडीशन फॉर एस इन सैंडविचेस। ठीक है, वो इंडेंटेशन उसी के बाद आएगा। देन आई एम यूजिंग इफ कंडीशन, कंडीशन के बाद उसके अंदर एक और कंडीशन लगा रहा हूँ विच विल डिफाइन कि चीजें चल रही हैं। ठीक है, काउंट 0 इक्वल्स टू 0। S equals to 1, sandwiches 1, count 1। सॉरी, इक्वल्स टू नहीं आएगा। ठीक है, इतना किस किस को समझ में आया, जो कंडीशंस आई हैव अप्लाइड फॉर इफ सेकंड एलिफ ऑप्शन एंड काउंट एल्स। 0 डिडक्ट होगा क्या? डिडक्ट होगा क्या? एलसिफ क्या? एलसिफ में भी काउंट 0 रिड्यूस होगा? हाँ, उसमें भी काउंट रिड्यूस ही, हाँ रिड्यूस ही होगा, क्योंकि काउंट 0 हमको, हाँ ठीक है, एक बार मैं उसको, देन वी विल बी राइटिंग एल्स ब्रेक। Fine. Then after breaking the thing, I have to come to for भाई मेरा रिटर्न ले जाएगा काउंट 0 प्लस काउंट 1। ठीक है, if I'm going to run this, wrong answer, why it's showing wrong answer? बिकॉज जो टेस्ट केस है वो टेस्ट केस आर नॉट पासिंग, एंड अगर हम प्रॉपर एरर के लिए जाते हैं तो एरर्स क्या क्या शो होंगे। ठीक है, आपको जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वो वैसे ही करना है।
ठीक है। ओके, तो बेसिक एक चीज देख सकते हो, काउंट जीरो, हाँ साइड से या सो बेसिक सी गलती हुई थी, काउंट जीरो हमने 2 बार लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट जो मिस अंडरस्टैंड हुआ था। ठीक है, तो वी आर गेटिंग विद मैक्सिमम साइकिल में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कंडीशन, तो हमने यहाँ फॉर एस इन सैंडविचेस लिखा है, आई हैव रिटन हियर फॉर एस इन सैंडविचेस। वो चेक करता है सैंडविचेस वाला पार्ट 1 by 1 फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। एंड जो कंडीशन दिखाई है मैंने, इफ एस डबल इक्वल्स टू जीरो एंड काइंड, ये चीज वाली, वो क्या करता है, अगर वो बोलता है इफ सैंडविच इज जीरो एंड एटलीस्ट वन स्टूडेंट वांट जीरो, देन गिव सैंडविच रिड्यूस टू काउंट जीरो। ठीक है, सेम इसमें भी, एल्स वाले पार्ट में भी। नाउ मूविंग विथ एल्स ब्रेक, वो क्या कर रहा है, इफ, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, इफ वाली कंडीशन, इफ एंड एल्स, एलिफ वाली कंडीशन, आई गेस सभी को समझ में आई, किसी को नहीं आई तो यू कैन रेज योर हैंड्स। मूविंग विद द 11th वाला पार्ट, 11th एंड 12th लाइन सेज इफ सैंडविच इज जीरो बट काउंट जीरो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, या फिर सैंडविच 1 है और काउंट 1 इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब होता है कि आप वहीं पर को ब्रेक करो और काउंट करने लग जाओ जितनी भी वैल्यूज है, and return count 0 plus count 1. So you will be getting your answer and things will be correct. Fine? Are you getting? किस किस को समझ में आई ये चीज? Can you repeat, sir? हाँ, Can you repeat? पूरा full. Yeah, from loop part, sir. हाँ, तो देखो, for S in sandwiches, for S in sandwiches क्या बोलता है? It simply says इट चेक्स सैंडविचेस, जो हमारी सैंडविचेस थी क्वेश्चंस में, वो एक एक करके सैंडविचेस को चेक करेगा, जो यहाँ पे को सैंडविचेस हैं वो एक एक करके सैंडविचेस को चेक करेगा। फाइन, देन वी आर मूविंग विद द स्टेटमेंट इफ एस डबल इक्वल्स टू जीरो एंड काउंट ग्रेटर देन जीरो, तो वो क्या कर रहा है, तो वो बोल रहा है इफ सैंडविच इज जीरो एंड एटलीस्ट वन स्टूडेंट्स वांट जीरो, if sandwich is zero and one student at least wants zero, तो वो बोल रहा है कोई बात नहीं, दे दो and reduce count zero, reduce count zero, why, क्योंकि मैंने माइनस इक्वल्स टू लगाया तो वो मेरा रिड्यूस करेगा। फाइन, सेम लॉजिक फॉर एलिफ ऑल्सो। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, सर। क्यों लॉजिक कहाँ लगा? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो रही है। इसमें क्यों लॉजिक कहाँ लगा रहा है कोड में? हाँ देखो, हमने काउंट के पहले हम काउंट कर रहे हैं ना चीजों को, पहले हम स्टैक में डालेंगे, स्टैक के बाद एक एक करके, जो ये पूरा लूपिंग सिस्टम है, ये जो पूरा लूपिंग सिस्टम है ये क्यू के ही अंडर तो है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स और एक सैंडविचेस का वो दिया है, स्टैक दिया, हम एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं ना चीजों को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आर यू गेटिंग, या फिर नहीं समझ में आया, दोबारा समझाना है? हेलो, thumbs up या फिर thumbs down, you can simply go with the thumbs up or a thumbs down. विक्रम सर, हेलो, समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा सा ट्राई करेंगे और समझेंगे। फाइन, तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू टू कंप्लीट, देखो एक क्वेश्चन ने हमारा आधा घंटा ले लिया है। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर कैसे चूज करते हैं कि इनको भी अभी इजी कैटेगरी में तो बहुत कुछ आता है, तो हाउ डू वी देखो, इफ यू हैव टू लर्न थिंग्स, ठीक है, अगर आपको कोई चीज सीखनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को पाइथन में डीएसए सीखना है, ठीक है, तो यहाँ पर को जो एक लर्निंग मॉड्यूल्स आते हैं उसमें आप यू कैन गो एंड क्लिक इट डाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने जावा की 30 days चैलेंज है, यू कैन गो, या फिर यू कैन गो विद द टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड आपको ये लगाने चाहिए। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग वन क्वेश्चन आल्सो खुद से, तो इट इज वेरी मच बेनिफिशियल जो कि आप जीपीटी या इन चीजों से कर रहे हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल
हमने कल एरे पढ़े, एरे के वी हैव 2099 क्वेश्चंस हमारे पास इसमें है, स्ट्रिंग के हमारे पास 852 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। शॉर्टिंग, इन चीजों के, हर चीज के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एरे सीखा तो उसके 5 क्वेश्चन लगा लो मैक्स टू मैक्स, सब आ जाएगा। तो सर कैसे वो अटैक करें, तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, डिस्क का रेखा देन हाउ डू वी देखो देखो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को, अब मैं क्या सीख रहा था, हम लोग पाइथन सीख रहे हैं तो वी आर कोडिंग हियर इन पाइथन। अगर मैं यहाँ पर कोई सी प्लस प्लस सीख रहा होता तो हम सी प्लस प्लस में जाते, एंड सी प्लस प्लस का सिंटेक्स दूसरा होता है, ठीक है। करने तो का क्वेश्चंस जो, ऑर्डर जो हम चूज करते हैं, जैसे कंडीशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो प्रोग्रामिंग आप अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, वो आप चूज कर सकते हैं। प्लस एक यहाँ स्टडी प्लान करके आता है, स्टडी प्लान में यू कैन अरेंज योर थिंग्स, ओके सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल के क्वेश्चंस करने, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या फिर स्किल्स प्रोग्रामिंग, या फिर अमेजोन के क्वेश्चन करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस वी कैन डू है, फाइन। Sure. Now question number two go to question number 2 which is of Q, ठीक है। एक बार इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एग्जांपल में चले जाते हैं। एंड इफ यू आर ए IITM BS पाइथन के स्टूडेंट्स, सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज गो टू योर टेस्ट केसेस, ठीक है। और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो तो आपको तो पता ही है, ठीक है। इफ यू आर गोइंग विद द एग्जांपल, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वी आर गोइंग विद द इनपुट। इनपुट इज इक्वल टू टिकट 232, k इज इक्वल टू 2 एंड आउटपुट इज 6। कैसे? इन क्यू डी क्यू करके कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है प्लीज? व्हाट इज द सी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज टाइम नीडेड बाय टू बाय टिकट। देखो, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग यू कैन रेज योर हैंड्स, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, प्लीज। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट के अंदर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो प्लीज कर दीजिए। कोई है एक्सप्लेन करने वाला? यू कैन थम्स अप, थम्स डाउन, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो इफ यू आर मूविंग विद एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इनपुट इज इक्वल टू टिकट 232, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 एंड आउटपुट इज कमिंग 6। ठीक है, अभी लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है हमको टिकट करना है आपके उसमें, हाँ ठीक है। एक बार एग्जांपल पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन। क्यू हैज 232 and where the k person is underlined after the person in the front, ठीक है। फ्रंट को वो बैक में डाल रहा है 321 एट फर्स्ट साइकिल में, ठीक है। सेकंड साइकिल में वो 212, तो वन तो है भी नहीं उस लिस्ट में। हाँ तो वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है 1 सेकेंड, क्योंकि इफ यू आर गोइंग विद टाइम वाला पार्ट, टाइम में 1 सेकेंड भी तो आएगा ना। n-1 where the 0% is at the front of the line and the n-1 person at the back of the line. 2 3 minus 2 is equal to 1. 3 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 1 तक आएगा, फाइन। तो पहले सेकंड में जो भी हमारा क्यू था वो जाएगा 321 पहला सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल हमारी क्या बोलेगी, नेक्स्ट साइकिल बोलेगी 212 सेकंड में, सेकंड में। वाह क्या राइम बैठी है। नाउ मूविंग विद द थर्ड साइकिल, देखो उसने कुछ नहीं करा, जो ये फर्स्ट डिजिट है ना, जो वो 3 है, 3 को वो 2 बन रहा है, 2 को 1 बन रहा है, एंड वो बाहर चले जा रहा है। 1 बनने के बाद वो इट इज गोइंग आउट, सेम साइकिल गोज हियर, ठीक है। क्योंकि लास्ट का क्यू बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन 3 पहले आया था,
3 रिड्यूस होते होते बाहर को निकल रहा है, एंड कितने सेकंड बाद? ये जो पूरी साइकिल चल रही है वो आई है 6 सेकंड्स में, दैट्स व्हाई द आउटपुट है 6। समझ में आया कुछ बहुत पार्ट? साइकिल चल रही है, साइकिल इज आइडेंटिफाई हेयर एज अ टाइम, टाइम जैसे ही चल रहा है तो वो 6 सेकंड में आइडेंटिफाई हो रहा है। एंड इफ यू आर मूविंग विद द सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला भी 8 सेकंड्स में हो रहा है। या सर के का क्या यूज है फिर इसमें सर, फर्स्ट देखो एग्जांपल में? k इज इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2, 3 2 2, हाँ ठीक है, उसने आइडेंटिफाई करना है अभी तो, लेकिन डिफाइन करनी पड़ेगी ना वैल्यूज। k इज इक्वल टू 2, रेंज भी तो लेनी पड़ेगी। यू विल बी राइटिंग द रेंज n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ठीक है। अगर आप ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग करोगे तो इंडेक्सिंग ये जाएगी आपकी 0 1 2 तक ही जाएगी। ओके सर, यस फाइन। सर। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तक आपका पूरा लीड कोड का ही सिंटेक्स आएगा, क्लास सॉल्यूशन डिफाइन डेफ 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 ये चीज। नाउ आई हैव रिटन हियर दिस थिंग, ticket is equal to ticket bracket. Why I have written this? This mean person needs t tickets. ठीक है, मैं आगे पे कमेंट्स लिख रहा हूँ। सो दे विल स्टैंड इन क्यू एग्जैक्टली टी राउंड्स, ठीक है। वो तीन जितने भी राउंड्स होंगे वो अकॉर्डिंगली घूमेंगे। नाउ आई हैव रिटन हियर t इज इक्वल टू 0, मैं वहां पे टाइम पे डिनोट कर रहा हूँ कि उतने सेकंड्स में वो राउंड काटेंगे। Now I have started a loop for I in range len. Length is length को हम हमेशा denote करते हैं len, जो कि हमने पढ़ा भी था। And this is used to calculate how many times each person get a chance before k finishes. जब तक पहला फिनिश करता है बैक वाले को कितना चांस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर को भी आप देख लो वो चेंज हो रहा है, 1 2 2 1 1 2 2 1 में ही चेंज हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा वो एक काइंड ऑफ सर्किल ही काट रहा है। नाउ मूविंग विद द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉजिक इन द क्वेश्चन, इफ आई लेस देन इक्वल्स टू के, टाइम प्लस इक्वल्स टू मिनिमम टिकट आई डॉट टी, जो हमने ये चीज लिखी है ये क्या बोलती है, और हमने यहाँ पर को मिनिमम टिकट क्यों लिखा है, मिनिमम टिकट आई कॉमा टी, इट इज बिकॉज पर्सन के विल स्टैंड इन लाइन फॉर टी राउंड्स, ठीक है। एंड एनीवन बिफोर कह सकते हैं, या फिर के कैन बाय एट मोस्ट टी टिकट्स, जो कि हमारा जो एग्जाम्पल है या फिर एक्सप्लेनेशन है उसमें भी आइडेंटिफाई हो रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही है चीज प्लीज? हेलो, को बात नहीं है, जय दोबारा बढ़ाएंगे। विक्रम, देखो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि एक टिकट है, टिकट की लाइन है, ठीक है। आप एक टिकट, यू 4 आर फ्रेंड्स, और आप टिकट की लाइन में जा रहे हो एंड यू आर स्टैंडिंग देयर, एंड क्यू क्या है 2 3 2 2, 3, 2, ठीक है। और जैसे ये है 2 3 2 वाला पार्ट, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलेगा, कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा गया होगा जो स्टैंड कर रहा है फर्स्ट पे? 2 गया होगा। तो हमें सबसे पहले क्यू का क्वेश्चन है, तो क्यू या फिर किसी भी चीज में हमें एक्सप्लेन हो रहा है कि जो पहला एलिमेंट है उसको बाहर करना है। अब वो बाहर कैसे होगा, पहले हमें स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ए क्यू इज अ ऑड स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो आई विल बी राइटिंग, एक साइकिल मैंने चलाई 1 2 3 1, व्हाई आई एम राइटिंग हियर 1, क्योंकि n टू n माइनस 1 नॉर्मल चल रहा है। इसमें भी आप ये चीज तो 2 पीछे रहेगा, आप नोटपैड पे जाइए सर। यप, सो 2 जो आगे था, जो सबसे आगे वाला 2 है 0 एंट्रेंस पे, वो गया पीछे, राइट? हाँ, वो n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 हो गया वो। तो वो क्यों घटा रहे हैं सर? 2 क्यों 1 बन गया? क्योंकि हम यहाँ पे को देखो ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सेज जो 0% है स्टैंड्स एट द फर्स्ट
ऑफ द लाइन, एंड जो लास्ट वाला होगा वो n-1 करना पड़ेगा हमें, नहीं, and the n-1 person is at the back of the line, बस वही बोल रहे हैं। बैक ऑफ द लेंथ। एंड वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि जो इसका एग्जाम्पल है या फिर जो एक्सप्लेनेशन है उसके मुताबिक हमें यही चीज समझ में आ रही है, एंड वी कैन प्रेडिक्ट इट। प्लस अगर ज्यादा टाइम है तो वी कैन ऑल्सो रीड ईच पर्सन टेक्स एग्जैक्टली 1 second टू बाई ए टिकट। Person can only have one ticket and has to go to the back of the line in order to buy more tickets. अच्छा, 2 है तो वो 2 बार लाइन में खड़ा रहेगा। सर फिर स्क्रॉल डाउन ठीक है। करिए, कर क्या होगा आगे? एक बार इसको रीड आउट कीजिए। कंटिन्यू द प्रोसेस 2 आगे आया, फिर 3 2 हो गया, ओके। फिर अच्छा, फिर वो 2 1 हुआ, अच्छा फिर 1 वो 0 हुआ, अच्छा ओके। सो ये अब समझ में आ रहा है। सो दिस गाय, दिस 232 मतलब ही नीड्स 2 टिकट्स, तो वो हाँ। लाइन में 2 बार लगेगा, और जो 3 हाँ। बंदा है वो 3 बार लगेगा, ऐसे होता अब जाएगा। अगर हमें साइकिल है, देखो साइकिल को रिड्यूस करेंगे ना, जब हम दूसरी साइकिल चलेगी तो 3 बन जाएगा 2, एंड जो ये 2 और 1 है इन दोनों में चेंजिंग हो रही है, 2 1 1 हो रहे हैं, नहीं 2 2 सर 2 1 2 होगा, 2 1 2 2 1 2, सॉरी 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 2 1 2, ठीक है। एंड जो दूसरी साइकिल होगी वो होगी 1 1 2 2 2 1 1। 1 2 1, हाँ एंड जो अब जैसे आपका 1 आ गया, हाँ, अब वो एंडिंग 0 वैल्यू हो आ गई, जाएगा, तो वो 1 0 हो जाएगा, उसको लिखना मतलब मूर्खता वाली 1 बात है। तो 0 वी विल बी गेटिंग 2 1, ठीक है। हाँ। सेम इस साइकिल में भी चलेगा, तो वी विल बी गेटिंग 6 स्टेप्स जो कि हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। सर 2 1 के बाद अब क्या होगा? 1 1 आएगा क्या 1 नेक्स्ट? 1 हाँ, फिर 1 बस खत्म ना। 1 1, फिर आएगा आपका नॉर्मली 1, नॉर्मली 1। मैं अगर लिखता हूँ तो यू कैन काउंट पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 स्टेप्स टोटल। एंड ऑल्सो एक लॉजिक ये चीज भी लगाते हैं, ठीक है, हर किसी को एक एक सेकंड लग रहे हैं, ओके। ठीक है। तो वी हैव टोटल ऑफ 3 पर्सन, 3 पर्सन को हमारे 3 सेकंड लगेंगे, 3 into 2 अगर आप करते हो तो उसको लगेंगे, ये लॉजिक गलत है बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। 3 2 जा 6 वी कैन से। प्रॉब्लम को समझ में आ अभी गया सॉल्यूशन। अब किस किस को डाउट है, प्लीज आई वुड बी रिक्वेस्टिंग, लीव करने से बढ़िया तो यू कैन आस्क प्लीज, समझ में भी आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर एक बार ये एग्जांपल 2 है, एक बार ये दिखाना। एग्जाम्पल 2, या एग्जाम्पल 2 का जो टिकट है वो है 5111 और की है 0, आउटपुट इसका आएगा 8। The queue starts as 511 where k person is underlined, ठीक है। 5 को उसने 5 को उसने अंडरलाइन करा। आफ्टर द पर्सन एट द फ्रंट हैज बॉट द टिकट, वो क्यू के जाएगा एंड में, एंड द पर्सन विल बी बिकमिंग 4 114 एट सर 1 second। ये क्वेश्चन तो समझ में आया, लेकिन के का रोल समझ नहीं आ रहा सर, क्या है के? व्हाट्स द एग्जैक्ट यूज ऑफ के? सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है के का बेसिक सा चीज, तो टाइम्स वाला चीज हो गया ना, k n-1। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, यूज समझ नहीं आ रहा, आपको इम्प्लीमेंट करना है नॉर्मली, ओके एंड के का ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। इफ यू आर लुकिंग इनटू द कोड ऑल्सो, ठीक है, जो के है, एक सेकंड दोबारा देना। अ, हाँ, तो जो यहाँ पर को अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, के जो है वो इंडेक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर पर्सन वी केयर अबाउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टिकट के अंदर जो के लिखा है, मैंने यहाँ पर टिकट के अंदर के इसलिए लिखा है, अगर यहाँ पर को वैल्यू आती है 2 और यहाँ पर को भी वैल्यू आती है 2, ठीक है, तो वो एक साइकिल चलेगी, एंड एक पर्सन को 1 घंटा लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है टू टेक अ टिकट।
समझ में आया या नहीं आया? प्लीज है, ओके सर, ओके सर। ठीक है। देखो के टेल्स अस, सिंपल सा इजी सा वन लाइन एक्सप्लेनेशन में कर दूं तो के टेल्स अस कैलकुलेट टाइम टिल दिस स्पेसिफिक पर्सन फिनिश, एक पर्सन जब तक फिनिश करेगा वो बताते रहेगा, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक वी हैव यूज्ड हियर। Can you run through the logic consequences? Okay. दिस कोड हाँ लॉजिक हाँ, और कोड द लॉजिक, कोड एक्सप्लेन, लॉजिक यार एक्सप्लेन होगा तो समझ में आएगी, प्रॉब्लम समझ में आएगी। So we'll just ठीक set है, me one after the other. Code. ओके। स्टोरिंग विद द गोइंग विद द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पर तक आपका लीड कोड का सिंटेक्स है, ठीक है। दिस इज लीड कोड का सिंटेक्स जो कि हम लोग ये कर रहे हैं। मूविंग विद द थर्ड वाला क्वेश्चन, टिकट इज इक्वल टू टिकट्स के विच इज स्टोरिंग हाउ मेनी टिकट्स पर्सन के वांट्स, ठीक है। एक पर्सन को कितना टिकट चाहिए, या फिर टिकट सेलिंग वाली चीज हो गई, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ एक पर्सन के है नीड्स टी टिकट, सो दे विल स्टैंड इन ए क्यू एग्जैक्टली टी टाइम्स। अगर दो हैं तो उसको दो बार ही तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, फाइन। तो टाइम हमने उसको 0 दे दिया। अब हम जाते हैं लूपिंग सिस्टम में। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टिकट, here we are going to calculate how many time each person get a chance before k finishes, फाइन। इतनी चीज समझ में आई, लूपिंग सिस्टम समझ में आया। नाउ मूविंग विद द इंपॉर्टेंट लॉजिक वाला सिस्टम, आई लेस देन के, ठीक है। जो ये चीज है, जो ये वाला पार्ट है, हाँ ये वाला पार्ट है। इफ आई लेस देन इक्वल्स टू के टाइम प्लस इक्वल्स टू मिनिमम टिकट I1, ठीक है। ये क्या बता रहा है? इसमें आप बोलोगे मिनिमम टिकट्स, ये चीज क्यों लिखी है? इट इज ये वाली पार्ट, ठीक है। मिनिमम टिकट्स I0 कॉमा टी, ठीक है। ये इसलिए लिखी है, इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज रिटन बिकॉज पर्सन के विल स्टैंड इन ए लाइन फॉर टी राउंड्स, anyone before or at k can buy at most t tickets, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया था। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर मिनिमम टिकट्स I कॉमा टी, ठीक है। ये मिनिमम MIN डिनोट्स मिनिमम, लेंथ डिनोट्स लेंथ, रेंज डिनोट्स N(n-1) वाला पार्ट, फाइन। इतनी चीज समझ में आई? Yes. Fine. So टाइम को हम मिनिमम, सर आप लाइन 10 समझा रहे हैं ना? लाइन नंबर 10 नहीं, 11 का जो मिनिमम टिकट्स वाला चीज है, लॉजिक वाला पार्ट। अच्छा, टाइम का चलिए। कुछ नहीं है, नॉर्मल सा यहाँ पर से पुट द वैल्यू गेट द, मतलब इस टाइप से करना है, ठीक है। क्वेश्चन से आपको वो चीज़ उठानी है और यहाँ पर को रख देनी है, टिकट्स आई। बस इतना है कि लॉजिक आपको देखना है कि भाई लॉजिक क्या यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मिनिमम टाइम प्लस इक्वल्स टू मिनिमम आपने यूज़ करा टिकट्स टी, वो आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, इतनी सी चीज़ है। इज दैट फाइन फॉर एवरीवन गाइस? हेलो, things are getting bored or like you are getting something from these classes, you can review these ones. Hello. Yeah, Here T indicates that how many maximum number of tickets we can buy, right? yeah. Oh, right. Fine for everyone, can we move to the second part? Now going moving to the third part. See, हमने 1 घंटे में 2 questions we are going to solve. If you are going daily, तो 2 hours 4 to 5 questions, 5 questions हम लोग implement कर देंगे, ठीक है। नाउ अब देखो, ये चीज हम यहाँ पर तक लिखी होगी स्टैक और काइंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। हमें स्टैक पढ़ना है। अच्छा, स्टैक हमने कल पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था?
give me a second. Python. Give me a second. यहाँ पर तक ऑल ऑफ यू लाइक सभी को क्वेश्चन समझ में आया गाइस, जितना हमने अभी तक देखा है? तो स्टैक इन पाइथन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, इट विल टेक ओनली 15 to 20 मिनट्स, जो कि हम लोग एक्स्ट्रा में चलेंगे. ठीक है, स्टैक क्या होता है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक आल्सो इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, जो कि हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहा था. बट स्टैक क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. 1 2 3 4 में डाल रहा हूँ, तो जो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कभी हमने अपेंड करा को स्टैक का कोई एग्जाम्पल. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक है ना. और जैसे हमने ए बी सी इंसर्ट करा, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी वी आर गोइंग टू इंसर्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब क्या होगा? कोई मेरे को बता सकता है? C went at the first. Yeah, Anshul, 100%. C went in the first but got removed first. Got removed last. Yeah, ठीक है. हमने A B C we are going to insert. ठीक है, अगर हमारी टेबल बनेगी फर्स्ट इन लास्ट आउट, C हमारा लास्ट में आउट हो रहा है, एंड वी कैन से सिंपली, एक सिंपल सा लॉजिक है, हमारा C को हम लोग लास्ट में डाल रहे हैं तो C हमारा पहले आउट होगा. फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला चीज. वाई यहाँ पर को हमारा सी क्यों नहीं आउट हो रहा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेबल ए बी सी, सी वो बोल रहा है कि लास्ट में है, सी बी ए. तो हमारा स्टैक आफ्टर एलिमेंट्स आर पॉप्ड, पहले सी बाहर हो रहा है, फिर बी बाहर हो रहा है, ए ही बचेगा. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सेम लॉजिक है क्यू का, जो हम लोगों ने यहाँ पे को इस्तेमाल यूज करना है. ठीक है, अपेंड करना है, इनिशियलाइज स्टैक करना है, ब्ला 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 थिंग. पुश पॉप. पुश मतलब होता है स्टैक के अंदर डालना. पॉप का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव या फिर डिलीट करना. आर यू गेटिंग इट? ये चीज समझ में आई ना? एवरीथिंग इज सेम इन स्टैक और काइंड ऑफ थिंग because they are linear data structure but only follows last in first out, also known as LIFO, first in last out. जैसे समझ पा रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट. प्लीज टेक अ लुक और ऑल्सो टेक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
ठीक है, यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में नहीं आया देखो, वी हैव दिस ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सी बी ए, सबसे पहले हमने ए को डाला, फिर बी को डाला, देन सी को डाला, एंड सबसे पहले जब हम बाहर निकालेंगे उसको हम सी को निकालेंगे। बट क्यू में क्या हो रहा था, क्यू में हो रहा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम ए को डाल रहे थे तो एक ही को बाहर निकाल रहे थे, एक ही को वो कर रहे थे। एंड स्टैक में एक ही होता है, टॉप भी यही होता है, रियर भी यही होता है, क्योंकि हमें लास्ट वाला ही एलिमेंट्स आउटसाइड निकालना होता है। वी हैव टू टेक आउटसाइड एलिमेंट। ठीक है, सॉरी, आर यू गेटिंग द स्टैक? थम्स अप और थम्स डाउन प्लीज। We can move in the question. Implementation of queue using stack. ठीक है, ये आपका पाइथन का क्वेश्चन है जो कि विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टफ, वहाँ का स्टफ, IITM स्टफ। मूविंग विद द थिंग, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। Question says implement first in first out queue using two stack. Let's move to example. Example क्या बोलता है? Example says my queue push peep pop empty. And उसने उसको लिस्ट के उसमें दिया है 0 1 2 empty empty empty. अब वो क्या बोल रहा है? null 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 1 1 false. कैसे? क्यों? Explanation है। If you are moving with the explanation, explanation says my queue is equal to new queue। ठीक है, अब वो जाएगा पुश, पहली चीज को पुश करेगा तो पहला एलिमेंट पुश होगा, दूसरे एलिमेंट को पुश करेगा तो दूसरा एलिमेंट पुश होगा, विच विल डिनोटिफाई कि वो नल है या फिर 1 है या फिर फॉल्स है। सिंपल सी चीज, इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग इज कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। पहला तो है क्यू फीफो को फॉलो करता है एंड स्टैक लीफो को फॉलो करता है, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको समझना पड़ेगा। फाइन, क्यू बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ अब जो कोड के उससे समझते हैं, एंड एट द एंड किसी को समझ में आया क्वेश्चन? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, अगर मैं आपको क्यू के बारे में बताऊं तो क्यू कैसे काम करता है। 1 पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन कम्स एंड इट इज इन द ऑर्डर 1 2 3। तो जो पहले आया वो पहले भाग जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक्स कम्स ऑन फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो द रियल चैलेंज इज कि हमें इन दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद वी हैव टू गो इनटू द आउटपुट, जो कि एक्चुअल में जो ये दे रहा है नल 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 1 1 फॉल्स। ये चीज समझ में आई नहीं है? प्लीज थम्स अप थम्स डाउन। या नीड तो नहीं है? एक बार दोहराइए प्लीज, सॉरी। देखो, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक, क्यू बोलता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक बोलता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, नहीं सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इतनी सी चीज है, पर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इन लास्ट इन, इन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करना है माई क्यू में। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा टिपिकल किस चीज से बनाया, क्योंकि इन्होंने ये जो क्लास दे रखी है माई क्यू वाली, ठीक है, इससे थोड़ा सा टिपिकल बनाया समझने के लिए, उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो एंड गेट बैक। अगर नहीं समझ पाया फिर मेरे को बताओ। एंड मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताया था, पुश में वी हैव टू ऐड एलिमेंट। सुनो सुनो सुनो, पुश में वी हैव टू ऐड एलिमेंट, पॉप में वी हैव टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट, पीक में क्या बोल रहा है? पीक सेज
सी फ्रंट एलिमेंट और एम्प्टी बोल रहे चेक इफ क्यू इज एम्प्टी। ये चार कंडीशंस आपको दिमाग में ध्यान से रखनी है, पुश पॉप पीप एंड एम्प्टी। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग ए थिंग तो कुछ सोचो, माइंड में सोचो व्हाई टू स्टैक्स। इफ वी यूज, इसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन ये है, इफ वी यूज स्टैक ए फॉर पुशिंग, स्टैक बी फॉर रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, तो हमें सीधा सा सिंपल सा काम करना है, वी कैन रिवर्स ट्वाइस एंड गेट लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर, जो कि एक छोटी सी ट्रिक है। अगर ये भी समझ नहीं आया तो इन सिंपल लाइन आई कैन हेल्प यू, यू आर ओनली अलाउड स्टैक, ठीक है, एक ही अलाउड स्टैक को आपने रखना है। नाउ क्रिएट समथिंग दैट बिहेव लाइक क्यू, ठीक है, एक स्टैक दिया है आपको, फाइनली आउटपुट में दिखाना है कि भाई वो क्यू की तरह काम कर रही है, इतनी सी चीज है, नथिंग एल्स। समझ में आई नहीं है, प्लीज हेल्प गाइस। हेलो, ऑडिबल? thumbs up, thumbs down, we have 12 members or we can say 10 members, दो तो नहीं है, ठीक है। तो हमें सिंपल सा काम क्या करना है, पहले इतना आपको दिया रहेगा, इनिशियलाइज स्टेप आपको उसमें दिए रहेंगे लीड कोड में, आपको कंडीशंस डालनी है सिर्फ डेफ पुश, डेफ पॉप, डेफ पीक, डेफ एम्प्टी, और इन चारों चीज को आपको चलाना है। अब वो आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो मैं आपको ऐसे इजी वे में बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा पुश वाला है, डेफ पुश सेल्फ एक्स सेल्फ डॉट इन इन सेल्फ स्टैक डॉट अपेंड, इट सिंपली पुश इनटू द स्टैक। ठीक है, इसका काम सिंपल सा है कि वो पुश करेगा, एंड सेकंड वाले का काम है वो सिंपली डिलीट करेगा। आपको वर्डिंग्स यू हैव टू कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, जैसे उसने void push int x, तो आपको def push self s self x self in self append, append मतलब ऐड करना, out मतलब पॉप करना, डिलीट करना। ठीक है, तो ये चार कंडीशन लगा के यू हैव टू डू शिफ्ट वाली कंडीशन, जो कि आपके लीफो को फीफो को फॉलो करेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कंडीशन जो 20th लाइन है वो वाली कंडीशन। और इसमें इफ आई एम गोइंग टू टेल व्हाट्स हैपनिंग हियर इन द लास्ट वाला पार्ट, इफ आउट स्टैक इज एम्प्टी, ये बोल रहे हैं अगर आउट स्टैक इज एम्प्टी, टेक एनीथिंग फ्रॉम इन स्टैक, रिवर्स कर दो उसको इनटू आउट स्टैक, तो यू विल बी गेटिंग FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया नहीं आया? आई गेस इसमें आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। विक्रम ब्रो, अजय, सुभाष, एक्सक्यूज सर, हाँ ये बताइए 21st लाइन बताना सर एक बार। कौन सी? 21st। हाँ, तो मैं वही बोला ना, देखो 21st वाले जो पूरा फंक्शन है ना, एक छोटा सा फंक्शन है जो वो काम कर रहा है, वो बोल क्या रहा है, इट हैपन्स वेयर, जब हमारे जो आउट स्टैक वाला चीज दिखाया है इसने, ये क्यों हो रहा है, वो टेक करेगा किसी भी, टेक्स एनीथिंग फ्रॉम इन स्टैक, इन स्टैक जो कि हमने यहाँ पर को अपेंड करवाया था, ठीक है, और रिवर्स कर देगा जो आउट स्टैक को। एक बार आप रफ में खुद करना, इन स्टैक को आप ऐसे लिख दे रहे हो एंड आउट स्टैक को आप रिवर्स कर दे रहे हो, तो इट विल, यू विल बी गेटिंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली स्टैक। समझ में आया? ओके सर।
ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट डाउन, कहीं पर को भी कुछ भी दिक्कत आती है यू कैन आस्क। आई गेस वी हैव टू कंक्लूड हियर एट 3 क्वेश्चंस। अभी वी हैव टू मच ऑफ टाइम, ठीक है, नो वरीज फॉर दैट, बट आई वुड बी रिक्वेस्टिंग नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप कोई भी क्यू के यू कैन, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग घर से कर लो एंड वो मेरे को बता दो, आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू, किसी को समझ नहीं आएंगे तो ठीक है। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने, या साइड बाय साइड कर लिया? मूविंग इनटू द लीड कोड वाला पार्ट, ठीक है, 2 और 1 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक एज अ होमवर्क वाला पार्ट, जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस, लाइक आर दिस सेशन हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? थम्स अप और थम्स डाउन, रियलिटी में बताना, और समथिंग वी हैव टू चेंज। कोई मेरी स्टैक मत देखिए भाई। ठीक है, हमने 232 हमने कर लिया। ओनली 1 क्वेश्चन यू हैव टू डू विच इज ए मीडियम या फिर इजी ही देते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग क्यूज, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। 225 225 दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू फ्रॉम योर होम, ठीक है, आते ही कल सबसे पहले हम वाला चीज, ठीक है, आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऐसे फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। 225 सबको करके आना है, कहीं नहीं आया तो मेरे को यू कैन एक्सप्लेन, ऑल्सो आई कैन शेयर यू दिस क्वेश्चन इन उसका योर, वो प्लान तो टुमारो। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, हमने क्यू एंड काइंड ऑफ स्टफ्स हमने कंप्लीट कर लिया, वी विल बी मूव, गिव मी अ सेकंड। According to the DSA plan, if you are moving, array string we has done, hashing वाला नहीं करा अभी, stack and queue we have done, heap, binary search, linear search दिखा दे रहा भाई, एक सेकंड देना बस। हाँ, तो we will be moving for tomorrow, we will be moving on to list अपन, ये चीज हो गया एडवांस पाइथन, we will be moving, ठीक है, अबाउट OOP कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट we will be टेलिंग यू टुमारो, एंड फाइल एग्जीक्यूशन क्वेश्चंस हम लोग क्यू लिस्ट एरे इन चीजों के ही we will be practicing tomorrow also, ठीक है। we are not going to in too much details in this OOPS के कॉन्सेप्ट या ये चीज, but we will be moving in क्वेश्चंस वाला पार्ट डीप, ठीक है। प्लस आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू, अगर किसी को भी कोई भी डाउट्स आते हैं तो यू कैन सिंपली, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा तो यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट इन माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, और यू कैन आस्क टू द कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, जो वायनाड के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको यू कैन शेयर द क्वेश्चंस, दे विल बी शेयरिंग। श्योर, आज के लिए फॉर टुडे वी आर गोइंग टू एंड इट हियर, इट्स टाइम फॉर 11:10 ऑल्सो, ठीक है। A general review from your side, if anyone can open your mic and say.
good, sir. But I think we have to put more effort, right, on our side. हाँ क्या क्या sorry your voice is not coming. No, I'm saying it's good, sir. It's good, right, but we have to put more effort from our side. समझने हाँ So we are going yeah we we have to solve more questions and we have to see it's a plan की it was a plan but it's a too late ठीक है बहुत लोग join नहीं कर पा रहे हैं there are like DMs की थोड़ा सा टाइम because of like TA session and kind of stuff we are going with 9 और stuff क्योंकि हमारा ही खुद 8 to 8:30 हमारा वो चले जाते हैं TA sessions right and I would be requesting if you have OPP तो इन चीज़ों को practice करोगे you are getting 100% A या फिर S grades क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता fine Okay, sir. so Thank you. yeah sure thanks a lot guys thank you for joining us today I would be requesting the coordinator to conclude it